अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स MGT 610 की फर्स्ट असाइनमेंट है। स्प्रिंग ये इन्होंने गलत लिख दिया, स्प्रिंग 2024 की है। इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया। ये यहाँ पे ये उसने ये किया, लिखा हुआ है 29 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है। 10 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। अच्छा, असाइनमेंट का में ये टॉपिक है यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है जी। अच्छा, इसमें टेक 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 ऑन a multinational corporation is the technology sector. In the technology sector is considering establishing a manufacturing plant in Southeast Asian country called Asiana, known for its lower labor cost and favorable tax regulation. However, recent reports from human rights organizations अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना ये टोटल 10 मार्क्स की असाइनमेंट है। ये सिनेरियो ये मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। तो दूसरा इसमें तीन जो है ना क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है। ये मैं आपको सोल्यूशन बताने से पहले बता दूं कि एक तो आपने फॉन्ट साइज़ जो है अपना टाइम्स न्यू रोमन या एरियल रखना है, और दूसरा साइज़ उसका 12 रखना है। MS वर्ड में आपने ये सबमिट करनी है असाइनमेंट। ठीक है जी। ब्लू या ब्लैक कलर फॉन्ट का यूज़ करना है। और दूसरा ये बाकी चीज़ें आप देख लें। ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं सिनेरियो। अच्छा, ये टेकॉन जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एनर्जी सेक्टर में है, establishing manufacturing plant Southeast Asian country called Asiana, known for its lower labor cost and favorable tax regulation. However, recent reports from human rights organizations and media channels have raised concern about labor practices in Asiana. The report highlighted instances of labor exploitation, including long working hours, unsafe working condition and limited worker rights protections। ठीक है जी। फिर वो कहता है डिस्पाइट दीज रिपोर्ट टेक ऑन जो है वो sees the potential economic benefits of establishing the manufacturing plant in Asiana. The company's executive believe that the lower production costs and access to a skilled workforce outweigh the ethical concerns raised by the reports. To address the ethical dilemma, TechOn decided to conduct a cost-benefit analysis using utilitarian principles. They aim to determine whether the economic benefits of establishing a manufacturing plant in the Asiana outweigh the potential negative impact on workers' rights and well-being. During the cost-benefit analysis, TechOn considered various factors including labor cost, regulatory compliance expenses, potential reputation damage, and societal impact. They assign monetary values to each factor and assess the net impact on stakeholders, including workers, stakeholders, customers, and broader community. फिर जी, after completing the analysis, TechOn concludes that the economic benefits of establishing manufacturing plant in Asiana offset the potential negative impact on workers' rights and well-being. They decided to move forward with their plans to establish the plant, emphasizing their commitment to complying with labor laws and improving working conditions in Asiana. अच्छा, ये तो इसका सिनेरियो हो गया। अब ये अपने पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टेक ऑन कैन इनकॉर्पोरेट इथिकल कंसिडरेशन। अच्छा, मैं आपको ना सोल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ। ये तीनों क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, सोल्यूशन शेयर करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि जिससे ये सोल्यूशन चाहिए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ईमेल एड्रेस पर सब्सक्राइब करने का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दे। मैं उस ईमेल के रिप्लाई में ये सोल्यूशन सेंड कर दूँगा। अच्छा, फिर ये तो आपको मैंने सिनेरियो बता दिया। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है कि वो ये है कि एक्सप्लेन हाउ टेक ऑन कैन इनकॉर्पोरेट इथिकल कंसिडरेशन इनटू इट्स decision making process regarding the expansion to Asiana. Provide 4 specific actions or strategies that TechOn can implement to ensure ethical business practices in the new location. अच्छा, एक तो आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे TechOn इनकॉर्पोरेट करेगी इथिकल कंसिडरेशंस को। ठीक है। दूसरा, आपने प्रोवाइड करना है 4 स्पेसिफिक एक्शंस, 4 स्पेसिफिक एक्शंस या स्ट्रेटजीज आपने बतानी है। अच्छा, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। इनकॉर्पोरेटिंग एथिकल कंसिडरेशन इनटू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस
especially in situations like Tech-On expansion to Asiana requires a comprehensive approach that goes beyond mere economic analysis. Here are four specific actions or strategies that Tech-On can implement to ensure ethical business practices in the new location. ये उसकी एक्सप्लेनेशन है और ये चार जो हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट बता दूं, हर स्टूडेंट ना अपना अपना इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके लिखे। एक ही जैसा आंसर को लिखेंगे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने चार जो है ना स्पेसिफिक एक्शन बताने हैं। ये मैंने आगे उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, इसको रहने दें। आप पहली जो है वो एक्शन या स्ट्रेटजी है कम्प्रीहेंसिव ड्यू डिलीजेंस। दूसरी है स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। तीसरी है एथिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और चौथी है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये चार स्ट्रेटजीज हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर टेक ऑन इफ इट प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर एथिक्स इन its expansion to Asiana. Identify 3 negative outcomes that the company may face because of disregarding ethical consideration. सबसे पहले आपने डिस्कस करना है पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करना है जो कि फॉर टेक ऑन के लिए फिट प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर एथिक्स। ठीक है ये। और दूसरा आपने आइडेंटिफाई करना है 3 नेगेटिव आउटकम, 3 नेगेटिव आउटकम को आइडेंटिफाई करना है। पहला ये डिस्कस किया है यहाँ पे, इफ टेक ऑन चूजेस टू प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर एथिक्स इन इट्स एक्सपेंशन टू एशियाना, several negative outcomes may arise impacting various stakeholders and the company's long-term sustainability. Here are 3 potential consequences. आप सिर्फ 3 जो हैं ये लिखे, मैंने आगे इनकी एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसको रहने दें। पहली जो है नेगेटिव आउटकम यह है रेपुटेशनल डैमेज। दूसरा है लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क। तीसरा है सोशल बैकलैश एंड एम्प्लॉय डिसकॉन्टेंट। 3 हैं ये, आप इन तीनों के बस नाम लिख दें, आगे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है एवेलुएट द रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन इन्फ्लुएंसिंग टेक ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग द एक्सपेंशन टू एशियाना। Also identify 3 stakeholders who may have vested interest in the company's actions and explain how their prospect could impact TechOn's ethical consideration and strategic decisions. ये 3 मार्क्स का है। इसमें क्या करना है, अपने एवेल्यूएट करना है स्टेक होल्डर्स का रोल को एवेल्यूएट करना है इन्फ्लुएंस करने में टेक-ऑन को। और दूसरा आपने आइडेंटिफाई करने हैं 3 की स्टेक होल्डर, 3 की स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। तो पहला जो है एवेल्यूएट ये किया है कि स्टेक होल्डर्स प्ले क्रूशियल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग टेक-ऑन्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग द एक्सपेंशन टू एशियाना। They represent individuals or groups who have a vested interest in the company's actions and can significantly impact its operations, reputation and bottom line. In the context of TechOn's expansion to Asiana, 3 key stakeholders with a vested interest in the company's actions are। अच्छा, 3 जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके नाम ये हैं, वर्कर्स एंड लेबर राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, फिर है शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर्स, और तीसरा है कस्टमर्स एंड कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स। ठीक है जी, ये है। अच्छा स्टूडेंट, ये आपने सब ने एक जैसा नहीं लिखना, हर कोई अपना अपना लिखे। ये जो पहला है वो जो उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन करना है, दूसरा ये 4, इसमें पहले क्वेश्चन में 4 स्पेसिफिक एक्शन थे, वो उनके ये नाम है। आप इनके साथ एक एक लाइन का ना इसका जैसे कंप्रेहेंसिव ड्यू डिलीजेंस है, इसका 1 लाइन का या 2 लाइन का लिख लें, लेकिन हर कोई अपने अपने वर्ड में लिखे, इसे देख ले। ठीक है, ये सारे हैं। तो इस तरह यहाँ पे ये था डिस्कस करना पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज। ये पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ये 3 नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट एक एक 2 लाइन के इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लें, लेकिन अपने वर्ड में लिखें। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन का जो था एवेल्यूएट करना रोल ऑफ स्टेक होल्डर, ये एवेल्यूएट कर दिया। तो आइडेंटिफाई करने थे 3 स्टेक होल्डर, तो ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं, इनको आप अपने वर्डिंग में एक एक 2 लाइन में एक्सप्लेन कर लें, लेकिन ज़्यादा लंबा ना करें क्योंकि छोटा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। ठीक है, ये 3 है। तो ये था, जिसे सोल्यूशन चाहिए हो वो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मैं इस ईमेल एड्रेस पे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, सब्सक्राइब करने का मैं उसे ये सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।